Our champion has performed exceptionally well in NEET 2023, and her story is the epitome of achieving success and coming back stronger. So let's welcome Anjali to the stage with a huge round of applause. सबसे पहले तो बहुत 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 सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको फॉर अचीविंग दिस स्कोर. मैं जानना चाहती हूँ, व्हेन डिड यू थिंक ऑफ एंटरिंग इनटू दिस लाइन? Ma'am, I think after 10th itself, when I was about to choose the streams for 11th class that time. तो वी हियर कि आपने एक साल ड्रॉप करके Yes. प्लान किया कि आपको फिर से नीट देना है. पहले तो क्यों, और दूसरा ये कि आपने इस जो आपने 11th-12th में प्रिपेयर किया था, when you dropped out, तो उसके बाद आपकी प्रिपरेशन में क्या क्या चेंजेस थे? Ma'am, actually, during my 11th and 12th, I was focusing on my CBSE board exams. So I was partly doing about NEET exams. No, so I was not fully focused on it. So in 11th itself, it was back in my mind that I have to drop 1 year because I am not giving my 100% for it. So after 11th, 12th, in the first attempt when I gave the exam, I scored 622. So after that, I thought I would take a college, but then my mind said that, okay, let's take one chance and see what happens. So in my drop year, then I have prepared again with institute. You know, dropping out is a big step that you take, है ना? आपके साथ के बच्चे कॉलेज जाना शुरू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मे बी आफ्टर दैट आपने अपने आप को क्वेश्चन किया होगा, क्या मैंने सही डिसीजन लिया या नहीं लिया? तो उस टाइम पर आप कैसे खुद को मोटिवेट कर रही थी? Ma'am, I had seen other examples of other students who had taken the drop years. So I was thinking that following them would be a better option. Then my friends were going colleges. Then I thought next year I will be going in a better college. That's it. Right, I will also go, but better. Yes. Talking about your coaching strategy, है ना? आपने आकाश कब join किया, and how has the journey been? Ma'am, in 11th and 12th, I was associated with Byju's, and after that, in my drop year, I joined my offline institute, Akash Institute. तो जो आप पहले जिस तरह से तैयारी करती थी और जब ये लास्ट ईयर में आपने तैयारी की, तो क्या क्या चीजों का आपने ध्यान रखा कि जो गलतियां आपने पहले की थी वो ना दोहराएं? Ma'am, first, if you want to clear NEET, your basics should be very strong. So I was clear that which are my weak topics, I should clear them in the first hand itself, because some topics were strong, some were weak. So that weak points were lagging last year. So in the first few months, I focused on them. Even if the institute was not on that topic, I used to on back follow them and clear from my teachers. And the second most important point, I think, the mock test. The first attempt, I didn't give many mock tests. So in my drop year, I gave many. Talking about the weak topics, I would want to know कि कौन से ऐसे subjects थे जहाँ पर आपको थोड़ी trouble आती थी, and particular topics, as you mentioned, कि यहाँ पर problem है, and how did you overcome them? Ma'am, if I went subject-wise, I didn't remember one thing about 11th biology. So first thing was clearing the concepts, reading NCERT, and means रट लेना बिल्कुल NCERT को. उसके बाद second point was, if we go for physics, I didn't solve particularly many numericals for 11 topics. So kinematics and all was, I would not say they are hard or something. If you do enough practice, they would be very easy scoring. So when I gave many test paper and all, they became strong. If for chemistry, inorganic was weak for me. So because it's remembering, I didn't give anything for remembering, so it will not come. You have to put efforts in remembering it. तो आप दिन में कितने घंटे पढ़ने को देती थी, कितने घंटे की कोचिंग, कितना घंटा सेल्फ स्टडी, how was your sleep cycle? क्या टाइम बेस्ट सूटेड था आपकी पढ़ाई के लिए? Ma'am, I would say depend person to person. I experimented a lot with my sleep cycle, and which fitted me best, it was then working out. I think if I want to say 11th class is a particular good class if you want to experiment with your sleeping habits and all. During our summer vacation, when a load would become, you can experiment with your self-study. I experimented like some friends, they would say we are studying for 4 o'clock in the morning. So I experimented पूरा रात जग के 4 बजे तक 5 बजे तक पढ़ना, दिन में सोना. It didn't work out for me. Then at the end, as exams were coming, I tried that, okay, sleep early, wake up early.
it worked for me. लेकिन जब आफ्टर यू नो दैट लास्ट 1 year व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग, तो जैसे कि आपने बोला कि आपको लगता था कि भाई ठीक डिसीजन है कि नहीं, मतलब अब अगर कम मार्क्स आ गए तो व्हाट वुड आई डू, तो उस टाइम पे बैक ऑन ट्रैक खुद को लाने के लिए और अपना हेड स्ट्रेट करने के लिए आप क्या करती थी? मैम फैकल्टीज से डिस्कशन, देन पेरेंट्स से डिस्कशन. आई वुड से पेरेंट्स मीन्स आई वाज for much of my time in my institute giving mock test. Then mock test was very important in my journey. I realized from very early on. I had seen other previous students that they, so when I saw about them, I was clear that I have 6 months remaining, I have 7 months, I have to start giving mock test. After that, when mock test में भी हर बार मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तो उस टाइम पे मम्मी से बात करना और पापा से बात करना, तो वो बोलते थे कि पिछली बार से तो अच्छे ही आएंगे क्योंकि अभी पढ़ लिया है. तो ज़्यादा मैम रिवीजन करना था मेरी जर्नी में और मॉक टेस्ट लिखना था, मतलब वही उसी के लिए मेरे को 1 साल लेना था. और इफ आई से आकाश का क्या रोल रहा है आपको सपोर्ट करने में? व्हाट वुड यू से? They were the biggest supporters, I would say, providing best quality materials, best faculties, I would say. Then mock tests. Online you would see some mock tests, but they are not particularly designed for the pattern they are following from 2-3 years NTA. They were very well designed, ma'am. I would say the mock tests and all I gave, it was good, ma'am. तो आई एम श्योर इस पूरी जर्नी के ड्यूरिंग आपने कई चीजें सीखी होंगी फर्स्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेके, एंड वी हैव सम फ्यूचर चैंपियंस इन हाउस एंड इनके भी कुछ सवाल हैं, तो वी वुड वांट यू टू हेल्प देम. या कैन वी प्लीज ओपन द फ्लोर टू देम? आई वॉन्ट टू आस्क, लाइक काफ़ी टाइम्स लाइक 11th में काफ़ी बच्चों के लाइक वेस्ट हो जाती है 11th, लाइक इतना लाइक स्टडी में वो नहीं हो पाता है. सो लाइक अगर हम 12th से स्टार्ट करें, लाइक 1 year सफिशेंट होगा कि लाइक हम ओवरकम करके सब कुछ एंड वापस स्टार्ट करें एंड स्टार्टिंग से? I would say it depends on your level, how much you want to invest in that. Our 11th was not good. That's why, because we were in, as they say, Corona batch. So it started pretty late for the batches and all. So after that, it was not sufficient because school was burdening on school exams. And everything was moving at a very fast pace. They were not, means we didn't have time for self-practice. So our 11th was, I would say, as they say, wasted for me as well. And then in 12th, you have pretty good time. If you want to invest, you can achieve it. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट ना हो, लाइक मेरे लिए वो फिज़िक्स है, तो मैं 2, 3, 10 क्वेश्चन कर लेती हूँ. एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो मेरे से नहीं होता है, तो फिर मेरा इंटरेस्ट चला जाता है और उसके बाद मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती. तो आपने ऐसे किसी सब्जेक्ट के लिए क्या किया, कंसंट्रेशन कैसे बनाई अपने उसमें? I would say it was a plus point for me. ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट जो रहता है ना कि मतलब ये सब्जेक्ट हार्ड है या ये चैप्टर हार्ड है, तो वो आप जब डिस्कशन करते हो किसी से, तो वो जब बोल देते हैं तो अपना भी दिमाग में लगने लगता है कि ये हार्ड है. तो मेरा इतना लोगों से कुछ कांटेक्ट हुआ नहीं, तो मेरे को तीनों सब्जेक्ट्स, मतलब बायोलॉजी अभी लेकिन डिवाइडेड है जूलॉजी बॉटनी में, लेकिन मेरे को ऐसा कभी दिमाग में आया नहीं कि ये सब्जेक्ट हार्ड है. मतलब क्योंकि अगर अच्छा स्कोर करना है तो आप कोई फेवरेट बना नहीं सकते, मतलब अंदर से होता है, लेकिन एग्जाम में तो सबके इक्वल वेटेज ही आती है. तो अगर इंटरेस्ट नहीं है जैसे फिजिक्स में, तो उसके लिए जैसे कोई कोई बुक्स रहती हैं जिनमें थोड़ा हार्ड चले जाता है, कि जेई इन सब लेवल तक भी चले जाता है, उसके लिए मैंने उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देके PYQs पे अच्छे से ध्यान दो. वो सॉल्व भी होते हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं. और एक ये फिजिक्स में मेन बात है, अगर आपने एक कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन कर लिया है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन आता है, आपको उसके सब पॉसिबिलिटीज़ देखनी होती है, उसके कोई ऑल्टरनेटिव मेथड्स है वो आप फैकल्टीज से डिस्कस करना चाहिए आपको, और इंटरेस्ट आ ही जाता है. फिजिक्स इतना बोरिंग भी नहीं है. मेरा क्वेश्चन है कि बायो इस साल थोड़ा लेंदी था, आपने लास्ट ईयर भी दिया, लास्ट ईयर तो काफ़ी लेंदी था, तो एज अ पर्सन जो बायो लास्ट में अटेम्प्ट करता है, how much time should I keep in hand for bio in case bio comes lengthy? मॉक टेस्ट आर अ ग्रेट सोल्यूशन फॉर इट. मेरा कभी, मैंने बहुत के देखे हैं जो 20 मिनट 30 मिनट में कर लेते हैं बायो, मेरा नहीं होता था. मेरा मॉक टेस्ट में भी 50 मिनट्स 40 मिनट्स लगते थे, और फाइनल में भी मेरे साथ यही हुआ.
लेकिन अगर आपको मॉक टेस्ट देने की आदत है तो आपको टाइम का अंदाजा वो 3 घंटे आप बेस्ट यूज करना सीख जाते हो। और होता है 3 hours 20 minutes का, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करके मत जाओ कि आपको पूरे आवर्स मिलेंगे। कुछ भी उधर मतलब आप नहीं चाहते वो हो सकता है। तो आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप एक और खुद ही अंदर बेल बजने लगती है कि ओके लिमिटेड से ज्यादा टाइम जा चुका है, तो जिसमें अटक रहे हो या दूसरे सब्जेक्ट में आप टाइम सेव करना सीखो। अगर आप लास्ट में बायो अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको थोड़ा फिर जल्दी जल्दी करना चाहिए। और अभी तो सेक्शन बी भी आता है, उसमें 15 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आपके पास अच्छा टाइम है, तो मैं तो ऐसे बहुत एग्जाम्स में जब टाइम रहता था तो मैं 15 के 15 जितने होते हैं उनमें से फिर लास्ट में चूज करती थी। लेकिन फाइनल में मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही 10 पिकअप कर लिए। जो नहीं आते उन पे नजर ही मत डालो, फिर अपना भी टाइम आ जाता है। थैंक यू। I would want to ask a question here कि NEET 2022 जो आपने अटेम्प्ट किया एंड NEET 2023 जो आपने अटेम्प्ट किया, तो स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस आए कि ये सब्जेक्ट मुझे पहले करना है, इसको इतना टाइम देना है? हाउ डिड यू डिसाइड ऑन कि अच्छा जो मैंने पहले किया था उसमें से ये करना है, जो मैंने पहले किया था उसमें से ये नहीं करना है? तो हाउ वाज 22 का अटेम्प्ट एंड 23 का अटेम्प्ट डिफरेंट फॉर यू? मैम इट वाज वेरी डिफरेंट फॉर मी। एज आई सेड अर्लियर, मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं दिए थे पहले अटेम्प्ट में। तो जब मैं एग्जाम में गई मैं बहुत फ्रेश माइंड था, मतलब मेरे में कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। ये बहुत नेगेटिव पॉइंट था मेरे में। मतलब मैंने मतलब ऑप्शंस क्वेश्चंस में आप देखोगे तो बहुत कम मिस्टेक्स होती है, क्योंकि 15 में से 10 अटेम्प्ट करने, लेकिन मैंने अपने फाइनल में उसमें भी मिस्टेक की थी। तो जब फिर उसके बाद मेरे को उसको ओवरकम करना था, तो मैंने जो मॉक टेस्ट थे उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन अप्लाई किए कि किसको पहले करना है। OMR फिलिंग, मैम आप ये भी नहीं है फुल पेपर आप अच्छे से अटेम्प्ट करो, OMR में गलत कर दो। उसके बाद तो मैंने मतलब देखा कि बायो पहले करो, केमिस्ट्री पहले करो, फिजिक्स पहले करो। मैंने कॉम्बिनेशन किया कि ऑप्शंस वाले सारे पहले कर लो। फिर जोन सा लास्ट में मेरे को सूटेबल लगा, मैंने लास्ट के मॉक टेस्ट में उसी को फॉलो किया। और मतलब ये था दिमाग में कि ये वही एक मॉक टेस्ट है, उसी की तरह। मतलब एक आप चेंज करोगे ना, आप एग्जाम में घबरा सकते हो कि ये मेरे हैबिट से डिफरेंट है। और अगर आप बहुत सारे मॉक टेस्ट लिख रहे हो तो जैसे ही पेपर मिलेगा अपना आप ही हाथ चलने लगता है, क्योंकि एक हैबिट बनी हुई है मॉक टेस्ट देने की। तो वो था। तो फाइनल जो 2023 का अटेम्प्ट था, which was a section that you gave most time to, and कैसे प्लान आउट किया आपने? मैम मेरी जो मैंने लास्ट में जो अपनी स्ट्रैटेजी चूज की थी वो थी कि मेरे को बॉटनी से पहले शुरू करना था, जूलॉजी खत्म करना है, केमिस्ट्री में आना है, फिर लास्ट में फिजिक्स करना है। तो मैंने सोचा था कि 2022 में बॉटनी से ज़्यादा बड़ा आया है, बैलेंस पेपर आएगा। लेकिन ठीक है, मेरे को थोड़ा लेंथी लगा था बायोलॉजी, मेरा टाइम से थोड़ा ज़्यादा हार्ड नहीं था लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था। तो जब मैंने बॉटनी अटेम्प्ट किया, जूलॉजी अटेम्प्ट किया, उसके बाद मैं फिर केमिस्ट्री में आई। तो केमिस्ट्री इस साल का सबको पता है, बहुत सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लिए, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ही आ गया कि थोड़ा है लेवल अच्छा है केमिस्ट्री का। तो जल्दी जल्दी मैंने मतलब मेरे जब मैं पेपर लिख रही थी एक पॉइंट ऐसा आया, मैंने पेपर रखा, लंबी सांस ली, क्योंकि पूरा ये पेपर पे डिपेंड कर रहा था कि क्या होने वाला है। तो एक दिमाग में अलग प्रेशर आ गया कि जो नॉर्मल हम एग्जाम्स लिखते हैं मॉक टेस्ट, वो वैसा नहीं है, ये जैसा करोगे ये वैसा ही आएगा। तो केमिस्ट्री में हुआ मेरे साथ कि मेरे को थोड़ी देर 2 मिनट आराम से लंबी लंबी सांस ली, वापस से मैंने शुरू किया केमिस्ट्री, जब मेरे को थोड़ा परेशान कर रहा था केमिस्ट्री। उसके बाद फिर फिजिक्स ठीक था, जल्दी जल्दी उसके अच्छा था, ठीक था, न्यूमेरिकल ज़्यादा लंबे नहीं थे, तो ऐसे ही था। So finally, that is the plan that worked for you, Yes. and that is the reason you are sitting in front of us and after scoring this well in NEET 2023. And along with your teachers, obviously the credit goes to your family also. And we have your father joining us. We would like to call him on the stage, please. Yes. सर सबसे पहले तो many congratulations. अंजलि ने इतना अच्छा स्कोर किया है. I'm sure you must be very proud. लेकिन कभी एक टाइम पर आकर जब इन्होंने आपको बताया कि I want to drop 1 year, तो उस टाइम पर आपका क्या रिएक्शन था, क्या सोचा आपने? उस टाइम पे हम रिएक्शन यही था कि उसने डिसाइड कर लिया है कि मेरे को जो मेरा एक गोल अचीव कर सकती हूँ मैं, और उसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं थी इस साल, तो इसलिए मैं डिसाइड कर लिया कि मैं 1 साल ड्रॉप लेके और अच्छा स्कोर कर लूँगा।
तो इसने डिसाइड किया, तो हमें एज ए पेरेंट्स भी हमें सपोर्ट करना है बच्चे को, जो उसकी चॉइस है, गोल है, उसमें हमें सपोर्ट देना है, तो हमारा ड्यूटी है, वो प्राइमरी ड्यूटी। तो हम लोगों ने उस हिसाब से इसको बोला, बेटे ठीक है कर लो। फिर इसने भैया से भी डिस्कस किया कि मेरे को ड्रॉप लेना है, तो भैया ने इसको एक चीज़ बोला था कि पहले ये डिसाइड कर लेना एक ड्रॉप लेना है या 2 लेना है। तो इसने डिसाइड कर लिया कि भैया मैं एक ड्रॉप लेना है और वही एनफ है मेरे लिए, क्योंकि कैलिब्रेशन हमें भी मालूम था, इसका स्टडी में बहुत टाइम देती थी। तो हम लोगों ने इसको सपोर्ट किया कि ठीक है बेटे तुम ड्रॉप करो, तो उसने ड्रॉप किया इसके लिए। आई एम श्योर ये जो जर्नी रही होगी, इसमें कई अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, इनके लिए भी और आपके लिए भी। तो आपने अंजलि को कैसे सपोर्ट किया उन टाइम्स में जब वो थोड़ा सेल्फ डाउट में थी या अच्छा नहीं स्कोर कर पा रही थी? हम लोगों ने इसको उस टाइम पे ये सपोर्ट किया, बेटे तुम अपनी मेहनत पूरी कर रहे हो, बस इतनी ही करते रहो, आप इसमें बढ़ाओ मत, ये बहुत मेहनत है, स्कोर आएगा बेटे। तो सर आप जैसे कि फोर्सेस में है तो ऑब्वियसली डिसिप्लिन आपकी रूटीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ma'am. रहा होगा, Yes, तो ma'am. आपने कैसे मेक श्योर किया कि ये भी प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो कर रही है? मैडम वो कभी हमने ऐसे देखने की जरूरत पड़ी नहीं मैडम कि डिसिप्लिन में है या नहीं, ऑटोमेटिकली दे बाय स्टार्टिंग से ही डिसिप्लिन है दोनों बच्चे, और हम तो ऑलरेडी फौज ने डिसिप्लिन बनाए हुए, तो ये अपने आप ही हमें देख के ही डिसिप्लिन में है। उसके लिए कोई अलग से हमने कभी बोला नहीं, कोई ज़्यादा शौकीन के थे नहीं। तो जितने भी अभी नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स को आपकी क्या टिप्स रहेंगी कि वो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें टू मेक श्योर कि अंजलि जैसे उनका बच्चा भी एक्सेल करे? बच्चे की मदर का 99% उसके अंदर होना चाहिए, पूरा बच्चे का हर चीज बच्चे की मम्मी को मालूम होना चाहिए, इसको अभी कौन सा बुक का जरूरत है। ऑटोमेटिकली मेरी वाइफ को इसके रूटीन के हिसाब से मालूम पड़ जाता था, अभी इसको ये बुक चाहिए, वो कहाँ रखी हुई है इसको नहीं मालूम है, वो इसकी मम्मी को मालूम है। मेरा तो यही बोलना है कि पेरेंट्स में फादर सर्विंग है तो कम टाइम दे पाएंगे, लेकिन जितना देना चाहिए उतना, जितना वो दे सकते हैं उतना दे दें, लेकिन मदर को पूरा टाइम अपना बच्चे को देना चाहिए 2 साल के लिए, तुम 11th-12th के टाइम पे। और अंजलि आपकी क्या सजेशंस रहेंगी, टिप्स रहेंगी टू द नीट एस्पिरेंट्स? रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको लगेगा इनऑर्गेनिक में मैं खास बोलना चाहूँगी कि आपको आता है, पर जब आप एग्जाम में बैठोगे, मेरे साथ फाइनल में भी हुआ, मेरे कुछ मतलब ऐसा बोलते हुए भी ऐसे अजीब लगेगा कि इतने इजी से कॉन्सेप्ट्स में आप भूल जाओगे क्योंकि आपने बहुत दिन रिवीजन नहीं किया। तो 1-2 क्वेश्चन में हुआ, लेकिन आखिर में जैसे ऑफलाइन का मैंने बोला फायदा है, तो मेरे को याद आया, मैंने खुद अपने टीचर से इस बात पे डिस्कशन किया था क्लास में। तो लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस डाउट में जो रखे थे, उनको जब मैं वापस से थोड़ा प्रेशर कम हो गया कि फुल पेपर अटेम्प्ट हो चुका है, तो मेरे को वो क्लासेस याद आने लग गई कि मैंने क्लास में अपने बॉटनी सर से ऐसे पूछा था इससे रिलेटेड, तो उस वजह से वो फिर मेरे लास्ट में सही गए, मतलब वो क्लास याद आ गई। अगर वो नहीं आती उस टाइम पे तो गलत हो जाते। तो वो जो ऑफलाइन एक्सपीरियंस था एंड वो कंटिन्यूअस डाउट्स थे इज what made you a champion today, because you overcame them and you worked on them, right? So again many congratulations sir, many Thank you. congratulations. Anjali ने इतना अच्छा स्कोर किया है. It has been a great conversation. Thank you so much Thank for you. taking out time and having a word with us. It has been an amazing conversation. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you.